Hello everyone. Let's continue the story The Enemy. This is the 8th lecture of explanation. On Saturday, we were on the point when Dr. Sadao suggested the American soldier that he could stand now, but for a little while. He said that within 15 days he would be able to walk, and at the same time, the American soldier thought that it was time for him to be handed over to the police, and he asked Dr. Sadao for that. Dr. Sadao didn't say anything. He thanked Dr. Sadao for operating upon him and saving his life, but Dr. Sadao said that he was thanking too early, which clearly meant that Dr. Sadao wanted to do something else which would hinder him to thank. And American soldier was a little bit in fear. Not a little bit, he was completely in fear. His fear could be seen in his eyes. So on this point we reached, and when Dr. Sadao saw that he was in fear, he saw that the scars on the neck of the American prisoner were fiercely red, but he didn't ask about that, why there were scars on his neck. Let's continue from the same point where we left on Saturday. This is the point where we have to start. In the afternoon, the second thing happened. Hannah, working hard on unaccustomed labor. Unaccustomed means something of which we don't have any habit. Unaccustomed labor means she didn't have the habit of working so hard. So she was tired. She saw a messenger come to the door in official uniform. Her hands went weak and she could not draw her breath. When she saw the messenger in uniform, she could not breathe. It means that she was scared. She thought that he might be there to arrest Dr. Sadao. The servants must have told already. What had they told? According to Hannah, they might have told that Dr. Sadao and his wife had sheltered an American prisoner of war. She ran to Sadao, gasping. Gasping means breathing heavily, unable to utter a word, unable to speak a word. But by then, the messenger had simply followed her through the garden, and there he stood. As she reached the doctor, messenger also reached with her. So she could not say anything. She pointed at him helplessly. So it is clear that Hannah wanted to inform Dr. Sadao that a messenger had come, and it was a warning bell. It was a signal that servants had reported about the presence of American soldier in their home. But she could not say because messenger had also reached there. Doctor looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. So he was sitting in his office and having the sunlight, southern sunshine he was having. What is it? He asked the messenger, and then he rose. Then he stood up, seeing the man's uniform, because the messenger was in uniform.
Dr. Sadao stood up to give him respect. You are to come to the palace, the man said. The old general is in pain again. So he was needed because the general was in pain. Oh, Hana breathed. Hana started breathing comfortably. Is that all? बस इतनी ही बात है. All? The messenger exclaimed. The messenger was surprised. Is it not enough? छोटी बात, बड़ी बात नहीं है क्या ये? The general was in pain. Indeed it is. Yes, बड़ी बात है. She replied, I am very sorry कि मैंने ऐसे कहा. Messenger doesn't know what was going on in Hana's mind. According to her, general's pain was not as big thing as that thing was what was going in her mind. So how could she tell this to the messenger? She had to feel sorry for that. What she said that, is that all? When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen, but doing nothing. The children were asleep, and she sat merely means keval, resting for a moment. So she got a little time to have rest. More exhausted, more tired from her fright means fear, than from work. So today she was completely tired, and it was not due to labor, it was due to fear. What was the fear? The fear of getting her husband arrested. The fear when she saw the messenger come in her home. She thought that servants had reported everything, and now the time had come that her husband would be arrested. So this fear made her exhausted. And Sadao recognized it, why she was so much tired. I thought they had come to arrest you, she said. He gazed. He looked intently. घूर करके देखा उसने, एक टक देखा. Down into her anxious eyes, tension filled eyes. I must get rid of this man for your sake. For you. I must get rid of this man. तुम्हारे लिए मुझे इस इंसान से पीछा छुड़ाना पड़ेगा. He said in distress. He said it in grief. Somehow I must get rid of him. So now Dr. Sadao is compelled to get rid of this man because his wife was in trouble. His wife was completely scared, and he didn't want her to be in fear. Although he didn't want to do this, but sometimes people have to do some things which they really don't want to, but they have to do it for their family. They have to do it for their loved ones. They are compelled to do this. Sometimes people have to leave the path of humanity, truth, because they don't want to drag their family members in trouble. Sadao goes to see the general. Of course, the general said weakly. The general said it weakly. What did he say? I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton. So few Japanese have. So I think Dr. Sadao has told everything to general. He has told him that his servants think that they were in America for so long time that now they think that Americans are their friends. आई थिंक ये बात उसने बता दी है, और इसीलिए जनरल ये कह रहा है कि मैंने भी बाहर से स्टडी की थी तुम्हारी तरह, जैसे मैंने अमेरिका से की थी. आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी. मान्यवर महोदय, मैं उस इंसान की थोड़ी सी भी परवाह नहीं करता हूँ, सडाओ सेड. बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, बट उसका इतनी सफलता के साथ ऑपरेशन करने के बाद, हाउ कैन आई हैंड हिम ओवर फॉर डाइंग. यही कहना चाहता होगा शायद.
Yes, yes, the general said, it only makes me feel you more indispensable. Indispensable means something that is more important, something that is necessary, something that cannot be avoided to me. मीन्स ये बात सुनने के बाद तो मेरे लिए तुम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हो. वाई? क्या कहना चाहता है जनरल? ही इज ट्राइंग टू से व्हेन यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ अ पर्सन हु वाज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ बाय ऑपरेटिंग एंड विदाउट हेल्प ऑफ योर स्टाफ. जब तुमने उसकी जान बचा ली तो इट मीन्स यू कैन सेव एनीवन. तो मेरे लिए तुम कितना इंपॉर्टेंट हो गए हो, मुझे मरने नहीं दोगे तुम. ही इज ट्राइंग टू से दिस एविडेंटली, क्लियरली. यू कैन सेव एनीवन. यू आर सो स्किल्ड. तुम कितने स्किल्ड हो. यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे. सो ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ. तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा ही एक अटैक और झेल सकता हूँ जैसा आज आया है मुझे. नॉट मोर देन वन, सडाओ सेड. देन सर्टनली आई कैन अलो नथिंग टू हैपन टू यू, द जनरल सेड विद एंग्जाइटी. एंग्जाइटी मीन्स टेंशन. तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा. मीन्स आई कांट गेट यू अरेस्टेड. ऐसा मैं कुछ नहीं होने दूंगा कि जिससे तुम ट्रबल में आओ. अगर तुम ट्रबल में आ गए तो डेफिनेटली हु विल ऑपरेट. मेरा ऑपरेशन कौन करेगा, मुझे कौन बचाएगा. तो तुम्हें तो मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा. हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस. नाउ हिज फेस वॉज एक्सप्रेशनलेस and he was thinking about himself only, which meant that he was in deep thought. You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. Suppose you were condemned to death. तुम्हें मौत की सजा दे दी जाए. And the next day I had to have an operation. और अगले दिन मेरा ऑपरेशन हो. कौन करेगा ऑपरेशन? Who will save me? मुझे कौन बचाएगा अगर तुम्हें डेथ पेनल्टी दे दी जाए. देर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी. और बहुत सारे सर्जन्स हैं. सडाओ सजेस्टेड. नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड. मैं किसी पे विश्वास नहीं करता. द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड. इज सेइंग कि बाकी सारे के सारे जर्मन्स के द्वारा, यानी कि जर्मनी जा कर के ट्रेन हुए हैं वो, और वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हैं. सक्सेसफुल मान लेंगे ऑपरेशन को मुझे मारने के बाद भी. आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू. ही साइड. ही टुक अ डीप ब्रेथ. इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैनॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रदलेसनेस. रदलेसनेस मीन्स क्रूएलिटी विद द अमेरिकन सेंटिमेंटेलिटी. मीन्स कोई ऐसा डॉक्टर हम बना दें जिसमें जर्मन्स जो लोग हैं उनके जैसी क्रूएलिटी हो और अमेरिकन्स के जैसी सेंटिमेंटालिटी हो. देन यू कुड टर्न योर prisoner ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड yet आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी while आई वॉज अनकॉन्शियस. सो हेयर डॉक्टर सडाओ इज़ बीइंग एड्रेस्ड बाय जर्नल. और वो ये कह रहा है कि भाई उसको लगता है कि अगर मैंने इसके सोल्जर को अगर मरवा दिया, अरेस्ट करवा के उसको फांसी दिलवा दी, तो ये मुझसे बदला नहीं लेगा ऑपरेशन करते वक्त. मीन्स ये अमेरिकन्स के द्वारा ट्रेंड किया गया है और ये सेंटिमेंटल है, तो ये भावनाओं में बह करके मुझे मार देगा ऑपरेशन के दौरान. बदला ले लेगा इस चीज़ का कि अगर मैंने उस अमेरिकन सोल्जर को मार दिया तो, मरवा दिया तो वो ये कहना चाहता है कि अगर ऐसा होता कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी क्रुएलिटी भी होती, थोड़ा निर्दयी भी होते तुम, जैसे जर्मन पीपल होते हैं, तो तुम फिर ये नहीं करते. तुम थोड़ा सा क्रूअल हो जाते और तुम ये सोचते कि भाई हमारी कंट्री के लिए अच्छा है ये, भाई वो सोल्जर हमारे देश का दुश्मन था तो उसको मरना ही था. और तुम भावनाओं में नहीं बहोगे और बदला नहीं लोगे अगर तुम्हारे अंदर जर्मन रदलेसनेस भी हो तो. सो ही इज़ ट्राइंग टू से दिस. जनरल इज़ कम्प्लीटली स्केयर्ड. जनरल उस अमेरिकन सोल्जर को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि इसका इतना अच्छा ऑपरेशन करने के बाद, इसको बचा करके अपने घर में रखने के बाद, डॉक्टर सडाओ थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गया है, भावनाओं में बह गया है और उसके साथ अटैचमेंट फील कर रहा है. और अगर अब मैंने उसको गिरफ्तार करवा के मरवा दिया तो इसको बुरा लगेगा और ये बदला लेगा उस चीज़ का. और इसीलिए डॉक्टर सडाओ
को ये बात बोल रहा है वो। द जनरल laughed. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. बड़े ही फनी वे में उसने पूछा, क्या तुम ये फॉरेन एलिमेंट्स कंबाइन कर सकते हो अपने अंदर? मीन्स तुम सेंटिमेंटल भी हो जाओ और क्रूअल भी हो जाओ। सडाओ स्माइल्ड. आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सेलेंसी। ही सेइंग कि भाई आपके लिए मैं ऐसा करना चाहूँगा। मीन्स मैं थोड़ा सा क्रूअल भी हो जाऊँगा और थोड़ा सेंटिमेंटल भी हो जाऊँगा। सो आई विल ट्राई टू डू दिस। The general shook his head. I had rather not be the test case. I don't want to be a test case, he said. He felt suddenly weak and overwhelmed. Overwhelmed means emotional, bhavuk, with the cares, with the tensions of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the साउथ पैसिफिक। मीन्स ही थिंकिंग कि जो भी टेंशन उसकी लाइफ में आई है, जब भी हमने बड़ी बड़ी जीत हासिल की है, उसके साथ जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं, उनसे जो टेंशन लाइफ में आई है, उन सभी के बारे में वो सोच रहा है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉज्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। चिढ़ते हुए कहा उसने कि भाई कमाल की टेंशन हो गई है ये कि दिस पर्सन हैज़ वॉज टू योर डोर स्टेप, कि ये इंसान बह करके तुम्हारे ही घर के बाहर आना था क्या? वाई इज़ ही सो इरिटेबल नाउ? इतना इरिटेटेड क्यों है वो? क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके ऑपरेशन में, उसके ट्रीटमेंट में किसी तरह की दखल आए। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द ड्यूटी एज अ जनरल, कि भाई उस अमेरिकन सोल्जर को गिरफ्तार करवाए वो, ये उसकी ड्यूटी है। बट वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने उसको गिरफ्तार करवा लिया तो डेफिनेटली सडाओ को बुरा लगेगा और फिर मैं तो गया जान से। सो इसीलिए वो चिढ़ा हुआ है कि अगर ये नहीं आता तो डेफिनेटली मुझे किसी चीज़ का डर नहीं होता और सडाओ मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से करता। तो अब दोनों में से एक ही चीज़ को चुन सकता है वो, या तो अपनी लाइफ चुने या उस अमेरिकन प्रिजनर को गिरफ्तार करवा के मरवाए। सो एक चीज़ को चुनना पड़ रहा है तो ड्यूटी को छोड़ना पड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए। दैट्स वाई ही इज इरिटेटेड। आई फील इट्स सो माई सेल्फ, सडाओ सेड जेंटली। सडाओ ने भी यही बात बोली कि भाई मुझे भी लगता है ये क्यों आया मेरे घर के बाहर। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड, नॉट बाई यू बट बाई समवन हु डज नॉट नो हिम। आई हैव माई ओन प्राइवेट assassins. Assassins means private killers, the people who are assigned the duty to kill or to kidnap the opponents of their masters. Means गुंडे जो होते हैं अपने कुछ लोगों को रखते हैं साथ में, अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उनको पकड़वा लेते हैं, उनको मरवा देते हैं। सो assassins, पॉलिटिशियंस ऑल्सो कीप देम, उनके हाथ मरवा दूँ उनको। सपोज आई सेंड 2 of them टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट, यू नीड नो नथिंग अबाउट इट। भाई मैं किसी भी दिन किसी भी रात तुम्हारे घर पे 2 को भेज दूँ, इट इज़ नाउ वॉर्म, वट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स। वही गर्मी है, अगर तुम उसका कमरे का बाहर का दरवाज़ा खुला छोड़ दो गार्डन की तरफ तो कोई अननेचुरल थिंग भी नहीं होगी। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सडाओ एग्रीड। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, वैसे भी खुला ही छोड़ते हैं हम उसको। गुड, द जनरल सेड योनिंग। योनिंग मीन्स व्हेन अ पर्सन इज इन गोइंग टू स्लीप, और जमाई लेना बोल सकते हैं उसको। दे आर वेरी कैपेबल assassins, दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। मीन्स वो ऐसी चोट मारते हैं कि अंदर ही अंदर खून बहता है कि बाहर तो खून भी नहीं निकलता है। मीन्स द जनरल हैज़ सो कैपेबल assassins, हत्यारे। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। दिस इज द सजेशन फ्रॉम द साइड ऑफ जनरल। इट शोज हाउ क्रूअल पर्सन दैट वॉज। सडाओ कंसिडर्ड, सडाओ थॉट that perhaps would be best, excellency, he
agreed thinking of Hana. हालांकि वो इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करता, बट हाना के बारे में सोचते हुए, अपनी वाइफ के डर को देखते हुए वो एग्री हो गया। आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे। यहाँ पर जनरल ने जो सजेशन दिया कि भाई वो अपने असिस्टेंट्स को भेजेगा, डॉक्टर सडाव एग्रीड, एंड ही एग्रीड ओनली बिकॉज ऑफ his wife. His wife was in fear today. He wanted to get rid of that person. He wanted to get rid of that person only for the sake of his wife. That's why he agreed. Although according to him it was a cruel action. It was cruelty. But what could he do now? So he had to agree. Okay. We'll continue from this point tomorrow. Till then, take care. Bye.